We have two short statements to make on two separate issues today. First one is on the Indo-China border standoff and the meeting of opposition parties convened today. Over the last 3 years, Indian National Congress has repeatedly demanded that BJP government takes the opposition into confidence on all issues concerning national security. We reiterated this demand on 30th of June as the current Indo-China border standoff in Bhutan raised grave concerns and serious implications for our national security. Indian National Congress again reiterates that on issues of India's security, entire country has to act as a unified pole. We shall support the government in every endeavor to defend our national interests and our borders. During the 10 years of UPA government, Congress party always ensured that the opposition leaders were briefed on every such issue. Pursuant to our demand, it is satisfying to note that after 3 years, government has finally woken up and has convened a meeting to brief the opposition parties on the current and emergent issues. Indian National Congress shall attend the meeting. We shall ask the government to share full information about background and situation that exists on Indo-China border, as also on Bhutan border where the standoff continues. We shall also ask the government to clarify all the implications for our national security and the necessary steps being taken to protect our national interests. If the need arises, Congress party leaders shall make an appropriate statement after the meeting. संक्षिप्त में मैं हिंदी में कहूँगा, पिछले 3 वर्षों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लगातार यह मांग उठाई है कि भारत सरकार को राष्ट्र सुरक्षा से जुड़े सभी मुद्दों पर विपक्ष को विश्वास में लेना चाहिए। हमने ये मांग 30 जून 2017 को एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से फिर उठाई थी, क्योंकि भारत चीन भूटान सीमा पर स्थिति तनावपूर्ण बनी है और जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर गंभीर परिस्थितियां निर्मित होती हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लगातार दोहराया है कि देश की सुरक्षा के हर विषय पर हम सब एक हैं। राष्ट्रहित, सामरिक महत्व व देश की सुरक्षा के हर मुद्दे पर हम सरकार के साथ हैं। यूपीए के 10 साल के शासन में कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ये सुनिश्चित किया कि ऐसे हर विषय पर विपक्षी दलों को विश्वास में लेकर पूरी स्थिति से अवगत रखा जाए। देर से ही सही 3 साल के बाद मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये ख्याल आया कि उन्हें विपक्षी दलों को इस बारे में विश्वास में लेना चाहिए और आज एक बैठक बुलाई गई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि सरकार द्वारा बुलाई इस बैठक में जाएंगे। हम भाजपा सरकार को कहेंगे कि वे पूरी जानकारी साझा करें तथा सीमा पर बने हालात और उसके कारणों के बारे में संपूर्ण विवरण दें। वे स्थिति से अवगत भी कराएं। हम सरकार को ये भी कहेंगे कि वो बताएं कि इस पूरी स्थिति का हमारी सीमाओं की रक्षा, सामरिक हितों व राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा तथा सरकार ने राष्ट्रहित में क्या-क्या कदम अब तक उठाए हैं और आगे आने वाले दिनों में क्या कदम उठाएगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो इस मीटिंग के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता एक तफसील से अपना वक्तव्य देंगे। There is a second issue on which we want to briefly say something. This is on FDI in retail. Prime Minister Shri Narendra Modi will chair a meeting today to review India's foreign direct investment policy
amidst news reports that government is considering relaxing FDI norms in retail, as also bring FDI in single brand retail under the automatic route. Congress party wants to remind that the UPA government took a series of steps to liberalize the economy, including permitting 51% FDI in multi-brand retail without hurting the Indian producers, our small-scale industries, or our wholesale or retail trade, and even restricted this FDI in multi-brand retail only to cities with 10 lakh population, that is semi-metropolitan cities. May we remind the Prime Minister Shri Narendra Modi and the BJP that it is BJP which virulently opposed the FDI in retail. On 14th September 2012, Shri Narendra Modi opposed FDI in retail and said, and I quote, "It would immensely harm small shopkeepers, hit the domestic manufacturers, and create joblessness. It would also mean that cheap goods produced outside will be dumped into our nation." On 2nd of December 2012, BJP moved a motion in Lok Sabha opposing 50% FDI in multi-brand retail, which was ultimately defeated. On 7th of March 2013, the then leader of opposition and current finance minister, Shri Arun Jaitley, stated that BJP will fight FDI in retail, I quote, "till last breath," unquote. And in 2014 election manifesto of BJP, it made a solemn commitment to people of India to oppose FDI in retail. We have seen a lot of talk on investment, but minimum results in 3 years of BJP government. So we watch the Prime Minister's review and the consequent decisions that he will take on FDI in retail today. We also want to remind the Prime Minister that right since 2015, that is for last 3 years, as many as 71 FDI proposals running into billions of dollars remain pending with the government, as nothing has been decided till today. This speaks volumes about government's commitment on ease of doing business. What is even more shocking is that the private investment is at its lowest ebb in India in last 25 years. We hope that Prime Minister Shri Narendra Modi will move beyond rhetoric to ensure growth in investment climate in India, and the current meeting will also not be relegated to photo ops and platitudes. We'll send you, of course, a detailed statement. Any questions you want to ask on the two issues, you're welcome to. Every issue that affects national security, every issue that affects our national interests, and every issue that relates to internal and external security of India is a matter of concern for each one of the 125 crore Indians. As a responsible principal opposition party, we shall be raising all these issues and many more in the parliament. हम इस प्रकार की बात को छोड़कर सरकार से ये जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि हमारी सीमा पर जो तनावपूर्ण स्थिति बनी है उसके मौजूदा हालात क्या हैं, सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, सरकार भविष्य में क्या कदम उठाने वाली है, इस तनावपूर्ण स्थिति से कैसे निपटा जाएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं और सरकार उनको टैकल करने के लिए क्या कदम उठा रही है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में सरकार को इस पूरी स्थिति से निपटने के लिए क्या नीति है और क्या रास्ता है जो सरकार अपनाने वाली है, और राष्ट्रीय सुरक्षा, देश की सुरक्षा, हमारे सामरिक हितों, हमारे देश की सीमाओं पर इसका क्या प्रभाव दूरगामी या अदरवाइज पड़ सकता है।
I'll also come back to you. Let's have one question each. Doesn't the Congress strategy group which met today understand that they are falling into a trap? Because this government of the day has after 3 years woken up not for any other design because they are faltering. And clearly the Congress party, you are not seeing this in NIA when the NIA allowed the eyesight team to go to Pathankot. Now today you are allowing an all-party meeting to give legitimacy to what the Chinese have done. How does the Congress party view this entire turn of events? And just by mere attendance, does this now mean that you are endorsing whatever steps the government of India is taking? Because this will really mean that. While I share your concern as a citizen of this country, and it's a very valid point that you raise, the important issue for the Indian National Congress and every citizen is protection of our borders, protection of national interests, and ensuring that government is doing everything within its might for protection of our national interest in toto, without compromising on it in any manner. What is the way forward? Government has to decide. What steps are to be taken? Government again has to decide. All that Congress party expects the government to do is to do the right thing in the interest of India, to protect our borders, to protect our time-tested positions, to protect our pact with Bhutan in a manner which protects the integrity, the borders, as also the area of Bhutan which we have responsibility to protect, and to do nothing that compromises national interest. We are not sitting with a closed mind. We shall like to hear the government. We shall like to question the government. And we shall like to act as watchdogs of nation's interests. I'll come to you, sir. Ma'am has been raising her hand for a while. I'll come to you. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुभव का राष्ट्र हित में सरकार जो फायदा उठाना चाहे या जो राय राष्ट्र हित में लेना चाहे, हम सदैव उसको देने को तत्पर हैं। जैसा एक मेरे आदरणीय साथी ने कहा, जब कुख्यात उग्रवाद को संरक्षण देने वाली आईएसआई को प्रधानमंत्री जी ने पठानकोट एयरबेस पर हमले के लिए बुलाया, अच्छा होता तब भी विपक्ष से राय ले लेते, तो हम सुझाव देते कि उग्रवादियों के संरक्षण वाली संस्था आईएसआई को हिंदुस्तान बुलाना पूरे देश की शहादत को और शहीदों की शहादत को अपमानित करना है। राष्ट्रहित में जो सही सुझाव होगा वो हम सरकार को देंगे। इसमें कोई राजनीति आगे नहीं आएगी। राष्ट्रहित राजनीति से बहुत बड़ा है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हमेशा राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा है। राष्ट्रहित में जो सही होगा, कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल वो सरकार को बताएगा। हम सरकार को सचेत भी करेंगे और सरकार से संपूर्ण जानकारी भी लेंगे, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी एक जिम्मेवार विपक्षी दल के तौर पर एक वॉच डॉग की भी है और राष्ट्र के एक प्रहरी की भी है। सारे देश की तरह हमारा भी ये दायित्व है कि हम राष्ट्रहित में सरकार को सही रास्ता दिखाएं और हम उस जिम्मेवारी के निर्वहन से पीछे नहीं हटेंगे। कैन वी कंप्लीट? मैं आप ले लूँगा ये सवाल एक बार। इस पे कुछ दोस्तों के सवाल हैं, अगर इनसे जुड़ा है तो मैं फिर आ जाऊँगा आपके पास। कांग्रेस अध्यक्षा और उपाध्यक्ष जी से कांग्रेस के पार्लियामेंट्री पार्टी के नेताओं की और इस मुद्दों से जुड़े सभी नेताओं का वार्तालाप हो चुका। हमारा प्रतिनिधि मंडल जाएगा। हम जो भी राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रहित, सामरिक महत्व के मुद्दे हैं सरकार के समक्ष रखेंगे, पूरी जानकारी लेंगे।
सरकार से ये भी जानकारी लेंगे कि उन्होंने क्या कदम आज तक उठाए, ये स्थिति पैदा कैसे हुई, इसमें किसकी भूमिका रही, भूटान से जो हमारी सुरक्षा की संधि है उसको हम और आगे मजबूत कैसे कर पाएंगे, क्या क्या कदम सरकार ने उठाए हैं, क्या कदम सरकार उठाने वाली है, और चीन, भूटान और भारत की सीमा पर ये जो स्थिति पैदा हुई है इससे सरकार कैसे निपटेगी। यस, if you heard my statement, I began by saying that it is Congress party which liberalized the economy on with many facets and brought the FDI in multi-brand retail to the extent of 51%, while protecting the interest of SSIs, the micro and small industries, and our small retailers. BJP had then opposed it. BJP is the one which is confused for last 3 years whether to go ahead or to retract. We also pointed out the various promises or the statements or assertions that were made by the present Prime Minister, the present Finance Minister as leader of opposition, the present Bharatiya Janata Party, both on the floor of the Parliament as also in the manifesto. So we are awaiting what Prime Minister seeks to do, and I said we will watch it closely. We also highlighted as to how, despite a lot of talk and air, nothing has fructified on the ground, with investment being at a 25-year low. We have also pointed out that 71 FDI proposals running into billions of dollars remain pending on the table of the Prime Minister. That is his commitment to ease of doing business. And we have requested Prime Minister to finally move forward beyond rhetoric to bringing in investment into India and to promote the investment climate, and we are one with that. After Ashish, I'll come back to you. आशीष जी, आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा। कश्मीर में पिछले 3 वर्षों से सरकार की नादानी, नाकामी और निकम्मेपन की वजह से जो विस्फोटक स्थिति पैदा हुई है, उसके लिए भाजपा पीडीपी की प्रांतीय सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार की नाकारा नीतियां उसका कारण है। कश्मीर में जिस प्रकार से बार बार बड़े उग्रवादी हमले हो रहे हैं, जिस प्रकार पाकिस्तान बेलगाम होकर हमारे सैनिकों को आए दिन उनकी शहादत पर हमारे सैनिक अपनी शहादत करके देश की सुरक्षा कर रहे हैं, जिस प्रकार नागरिकों की हत्या हो रही है, जिस प्रकार पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थापित उग्रवादी कैंप से आए दिन उग्रवादियों का निर्यात हो रहा है, किसी भी राष्ट्र के व्यक्ति के लिए यह चिंता का विषय है। दुर्भाग्य से आदरणीय प्रधानमंत्री जी और भाजपा सरकार ये समझती है कि उनके पास सब जवाब है, और उन्होंने आज तक कभी विपक्षी दलों को ना विश्वास में लिया, ना इस पर चर्चा की। हमें उम्मीद है कि देर आए दुरुस्त आए। पहली बार उन्होंने कोई सार्थक कदम उठाने का प्रयास किया है, नतीजा मीटिंग के बाद पता चलेगा। वो इस कदम को आगे बढ़कर कश्मीर में जो आंतरिक सुरक्षा के गंभीर हालात हैं और अमरनाथ यात्रा पर जिस प्रकार से सुरक्षा चूक हुई, इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, हमला हुआ, यात्रियों की हत्या हुई, 3 उग्रवादी हमले हुए, उसको लेकर संपूर्ण तौर से वो विपक्षी दलों और देश को विश्वास में लेंगे, ऐसी अपेक्षा हम करते हैं। आदित्यनाथ सरकार कानून व्यवस्था की सुरक्षा में औंधे मुंह उत्तर प्रदेश में गिरी है, पहले दिन से यह सर्वविदित है। सच यह है कि उत्तर प्रदेश में जो रक्षक हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, अभी तो वही सबसे ज्यादा भाजपाई गुंडों के द्वारा उत्पीड़ित हैं। चाहे महिला पुलिस अधिकारियों के साथ बदतमीजी की जा रही हो
और उसके बाद उनका स्थानांतरण नेपाल बॉर्डर पर किया जा रहा हो, चाहे पराशर नाम के एक डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को थप्पड़ मारा जा रहा हो, चाहे एक और पुलिस के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के घर में घुसकर उनकी पत्नी और बूढ़े माँ बाप को उत्पीड़ित और गाली गलौज किया जा रहा हो, जिस प्रांत में जनता की रक्षा करने वाली पुलिस ही गुंडई से उत्पीड़ित है, उस प्रांत में कानून व्यवस्था की क्या हालत होगी आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो विस्फोटक पाया गया है, इसको लेकर गंभीर चिंता व्यक्त करती है। आदित्यनाथ जी अपना पल्ला मत झाड़ें, एनआईए को ये जांच ऑर्डर करके और भेजकर। क्या हम ये मान लें कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस प्रकार की गंभीर घटना की जांच में असक्षम है? क्या हम ये मान लें कि उत्तर प्रदेश का राजनीतिक नेतृत्व समेत मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के अपने आप को इतना असहाय और असक्षम महसूस करता है कि वो प्रदेश की विधानसभा की सुरक्षा भी नहीं कर सकते? जो सरकार प्रदेश की विधानसभा की सुरक्षा नहीं कर सकती, वो उत्तर प्रदेश के लोगों की सुरक्षा क्या खाक करेगी? और केवल एमएलएस को टेलीफोन अंदर लाने जाने पर बैन लगाकर विधानसभा की सुरक्षा नहीं होगी। इस प्रकार की प्रतीकात्मक बातें कर भाजपा सब बातों को दरकिनार कर देती है, ये निंदनीय है। आदित्यनाथ जी को चाहिए कि वो जिन व्यक्तियों ने विस्फोटक विधानसभा में रखा उसकी जांच करवाएं। उत्तर प्रदेश की पुलिस अगर असक्षम है तो माने कि उनकी सरकार और पुलिस असक्षम है, और अगर सरकार विधानसभा की सुरक्षा नहीं कर सकती तो ऐसी सरकार कैसे जनता की सुरक्षा करेगी? ये प्रश्न आपके माध्यम से हम आपके दर्शकों और पाठकों तक रखते हैं। क्या हम इस बारे में सरकार के वक्तव्य की इंतजार करेंगे? हमें मालूम है कि 30 वर्ष पहले देश की सर्वोच्चतम अदालत तक जो मामला खत्म हो गया, और भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं जिन्होंने इसको एक पेशा बनाकर अपने राजनीतिक करियर को आगे चलाया, अब जब वो पूरे मामले का 30 वर्ष पहले उच्चतम न्यायालय तक पटाक्षेप हो गया, तो आज उस बात को कुछ चुनिंदा न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से रीप्लांट करने की कोशिश की जा रही है। किसी व्यक्ति विशेष का, किसी मित्र का ये एजेंडा हो सकता है, मित्रों का एजेंडा हो सकता है, परंतु सच्चाई को आवरण की आवश्यकता नहीं, और उस सच्चाई की जांच देश की उच्चतम न्यायालय तक हो चुकी। आदरणीय त्यागी जी हमारे बुजुर्ग हैं, इस मंच पर कई बार आपने उनको सुना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, और हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। आज भी वो हमारे सहयोगी हैं, और जब वो इस मंच पर पहली बार आए तो उन्होंने कहा था कि मैं सब गिले शिकवे पिछली सब बातें छोड़कर आया हूं। आप ही ने शायद प्रश्न पूछा था, मैं याद दिलाऊं। बिहार का गठबंधन अटूट है। बिहार का गठबंधन सिद्धांतों के आधार पर बना है। वो सिद्धांत जो बिहार की तरक्की की बोली लगा रहे थे, जिसको बिहार की जनता ने नकारा, वो सिद्धांत और वो विचारधारा जो बिहार की गंगा जमुनी तहजीब को तोड़ना चाहती थी, और इस गठबंधन के माध्यम से बिहार के लोगों ने उसे नकार दिया। इसलिए कोई और बात कहने से पहले तीनों पार्टियों के नेताओं को मेरी राय है कि वो अपनी अपनी पार्टी के नेताओं से समेत नीतीश बाबू से राय अवश्य कर लें, उसके बाद कोई टिप्पणी करें।
This is a decision that government has to take based on facts and information they have. Unfortunately, as I pointed out today, we are not privy to the material and information that they have on a particular individual. If there is any culpability, even if there is an iota of culpability, please proceed. Who is stopping you? Please proceed even with a friendly country. And please ensure that everybody who is guilty is brought to book and law of the land prevails. Thank you.